आज हर पेरेंट्स के दिमाग में, नॉट ओनली इन इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्स में, एवरी पेरेंट थिंक्स व्हाट आफ्टर अस। एक बहुत अहम क्वेश्चन है। मैं तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे बोलूंगा कि आप एक मुहिम बनाओ, पेरेंट एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा बनाओ और वोकेशनल और रेजिडेंशियल के ऊपर काम करो। छोटे छोटे होम्स बना लो और इन बच्चों की रेजिडेंशियल सुविधाएं इनको दो। Everyone, I am Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Perfect Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Mr. Amarjeet Singh Anand. He is a businessman turned social activist after 32 years of entrepreneurial journey. He is the president of Chenan Association for Mentally Retarded Children, which is registered. He was also the vice president of the National Confederation of Parent Association, which is Parivar, for North Zone for 9 years continuously, and at present representing Parivar as a technical advisor. He is an expert member of the State Advisory Board under the RPWD Act 2016, Punjab Divyang Jan. He was a member of the Child Welfare Committee 2018 to 2021. He is at present member of Juvenile Justice Board Jalandhar. He is a member of Grant in Aid Committee Punjab for Government of India, funding to Punjab State NGO up to 2024. He is an executive member of Special Olympics Bharat Punjab. He is state coordinator for accessible elections by CEO Punjab. He is state coordinator for PWD COVID vaccination camp. He represented 5 lakh Divyang Jan of the state. Today he will be discussing with us about his life journey. So let us hear from him. Welcome sir. The platform is open and now over to you. Thank you so much, Jitendra. Thank you so much, Jitendra. It's my pleasure to join you in today's webinar interview. It was 21st December 1986 when I was blessed with a daughter, very sweet child, looking like a Barbie doll. The initial journey was full of joy and happiness in the family. Later, after 3 months, a doctor told me, "Do you know something about your child?" I said, "Nothing especially." "Why did you ask this question?" He said, "Your child is Down syndrome." एक बार तो जब सुना कि डाउन सिंड्रोम, तो सिंड्रोम्स के साथ मेरे पैरों तलों में, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई और हम हिल के रह गए थे कि ये क्या हो गया, इस बच्चे को क्या बीमारी लग गई। बट विद टाइम, विद नॉलेज, विद डिस्कशंस, हमको ये पता लगा ये कोई बीमारी नहीं है। उससे हम लोगों को कुछ राहत मिली कि इट इज क्रोमोसोम डिसऑर्डर एंड इट इज यूजुअली व्हेन पेरेंट्स आर इन नियर रिलेशन, अगर वो करीबी रिश्तेदारी में शादी होती है तब होता है, या अक्सर जो मेडिकल या एपिलेप्सी कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जिससे ये पता लगता है कि ये बच्चा इस कारण है। पर जो जेनेटिक रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसका ये तोड़ निकाला था कि क्रोमोसोम डिसऑर्डर करके। तो देयर वाज, मैंने मतलब टाइम टू टाइम एम्बेसीज को लेटर डालना और उनसे वहाँ के स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट नंबर लेने। हमारे पास उस समय मोबिलिटी नहीं थी, मेल वाला भी काम बहुत थोड़ा था हमारे पास, ईमेल भी इतनी नहीं थी। बट हम लोग को अगर बाहर कहीं बात करनी है यूएस में या और किसी कंट्री में, तो वी हैव टू बुक अ ट्रंक कॉल, राइट, एंड हमारा और वहाँ का टाइम डिफरेंस, फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेना, मतलब इट वाज सच अ स्ट्रगल कि बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। बट समहाउ हम लोगों ने इसको स्वीकार किया। जैसा कि एक मेरे को डॉक्टर ने बोला था, "Anand sir, you are the most luckiest person. God has chosen you to blessed you with the daughter. Right. Don't curse the God, praise the God for accepting you, having given this child to you." So बड़ी इच्छा शक्ति हमारी बढ़ा दी उस डॉक्टर के इन बातों ने कि हम जिसको एक परेशानी की तौर से देख रहे थे, एक मुसीबत की तौर से देख रहे थे, हमारा कंसेप्ट, सोच का कंसेप्ट सारा बदल गया।
हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बच्चे के साथ उसकी जो रिक्वायर्ड थेरेपीज थी, रिक्वायर्ड उसके इश्यूज थे, उन पे वर्क करना शुरू किया। एंड बाय ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी मैंने हर बच्चे के अंदर जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखता था तो मेरे को वो अपनी बेटी ही नजर आती थी। ग्रेट। इस बीच 94 में हमारे पास एक रीजनल डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप, उस समय NIMH बोलते थे, उसका रीजनल सेक्टर था लाजपत नगर दिल्ली में। वहां के डॉक्टर KN ओझा एक वर्कशॉप पे हमारे डिविजनल कमिश्नर एक रेड क्रॉस का एक स्पेशल स्कूल चलाना शुरू किया था उन्होंने, उसके लिए उन्होंने उनको बुलाया था। एंड आफ्टर द 2 days वर्कशॉप he concluded with this that since we were around 26-27 parents in that workshop, मैं आज आप एक पेरेंट एसोसिएशन बना के जाऊंगा। Right. मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को आपने रिप्रेजेंट करना है, इन बच्चों की आवाज आपने बनना है। और वो दिन था गुरु नानक बर्थडे। हम लोगों ने उस एसोसिएशन का नाम चानन पेरेंट एसोसिएशन रखा। फिर जब तक रजिस्ट्रेशन कराने का नाम आया, बारी आई, तो चानन एसोसिएशन फॉर MR चिल्ड्रन रख दिया उसको 96 में हम लोगों ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के एसोसिएशन का उसको हम लोगों ने रजिस्टर कराया और दैट वाज द फर्स्ट पेरेंट एसोसिएशन इन पंजाब। वंडरफुल। तो मेरे को यही था कि मैं अपने बेटी को कुछ अच्छा इसको ये दे सकूं, एकेडमिक दे सकूं, बट हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स नहीं मिलते थे। इवन जो रेड क्रॉस का स्पेशल स्कूल था जहाँ ये जा रहे थे, वहां पर भी दिक्कत यही थी कि वहाँ ग्रेजुएट बच्चों के साथ वो सेंटर को चला रहे थे रेड क्रॉस वाले। राइट। स्पेशल एजुकेटर नहीं थे। और देखते देखते मेरे शहर के अंदर 2 से 4, 4 से 6 ऐसे स्पेशल स्कूल्स तैयार होते गए। और मेरे को भी था कि कुछ हम पेरेंट्स मिलके भी कुछ ऐसा करें। बट मेरे जो मेंटर थे मिस्टर JP गडकरी, आज भी हैं, बैंगलोर में हैं, ही इज 90+। तो he used to tell me, Amarjit, don't go for a special school. There are number of special schools and you should work so that the special schools की कार्यशैली अच्छी कर सको, आप अच्छे एजुकेटर रख सको, आप उनके पीछे ये पड़ जाओ कि अच्छे एजुकेटर्स लेके आओ, बट डोंट गो फॉर स्पेशल स्कूल। आपने जब भी कभी कोई काम करना है, थिंक ऑफ व्हाट आफ्टर अस, थिंक फॉर देयर इंडिपेंडेंसनेस, कि वो अपने बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक पेरेंट्स है तब तक तो सपोर्ट है, उसके बाद क्या होगा। तो स्कूल्स में भी वही है कि अगर आप अपना स्कूल शुरू करते, प्रोबेबली आप एक स्कूल को ध्यान दे पाते, बट आज की डेट में आप इतने सारे बच्चों को सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो दिस इज रियली वंडरफुल। तो चलिए सर, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, आज का डिस्कशन, आज का इंटरव्यू। तो पहली चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड योर लाइक पास्ट लाइफ, योर लाइफ हैज अफेक्टेड द पर्सन हु यू वांटेड टू बी इन योर लाइफ एंड व्हाट यू आर। तो दिस इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू, जैसे हमारे हमेशा थॉट्स रहते हैं बचपन में या बड़े होते हुए कि हमें ये चीज करना है या वो चीज करना है, और वो उसमें और आज जो आप कर रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरी लाइफ में 2 बार चेंजेस आए। पहला चेंज तो 1984 riots. Earlier we were living in UP, Kanpur, and from Kanpur we had a very big financial loss due to the 84 riots. हमारा पूरा जो रिहाइश थी, हमारा रेजिडेंशियल था, we were 3 brothers, parents, all the 4 sisters were married that time. और मेरी मैरिज को अभी 2 साल ही हुए थे और हमको वो कानपुर छोड़कर आना पड़ गया। राइट। क्योंकि एक बारी फिर दोबारा से बिजनेस एस्टेब्लिश करना और लाइफ को अपना सेटल करना एक चैलेंज था। वो जब भी जूझ रहे थे उसके साथ, तब एकदम इस बेटी का जन्म हो गया। बेटी के जन्म के साथ ये डाउन सिंड्रोम जुड़ गया और एक अनदर चैलेंज एक मेरे सामने आ गया। तो लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बन गया। जी। तो बट सर, आपके बचपन में कुछ तो थॉट्स रहे होंगे कि बड़े होके मुझे क्या करना है लाइफ में? नहीं, क्योंकि माय फादर वाज इन द फैमिली, वी हैड बिजनेस विद द आर्मी के साथ हम लोग काम करते थे। We were having CSD canteens, which later on were taken over by the government. Our last canteen was in 1964.
फिर 64 के बाद वी स्टार्टेड विद कंस्ट्रक्शन इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके। हाँ, सो वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन वर्क एंड यही था कि समय के हिसाब से एज ए कॉन्ट्रैक्टर ही रहने का था। मतलब कॉन्सेप्ट बचपन से वो क्लियर था, फैमिली में बिजनेस था तो बड़े होके बिजनेस ही करना है। बस बिजनेस ही करना है। बट मेरे को थोड़ा सा लाइफ में चेंज चाहिए था, मैं मांगता था, क्योंकि अभी यंग था उस समय। तो जी। हमारे यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई थी, एक सीवर क्लीनिंग में, कानपुर के अंदर सीवर क्लीनिंग में 4 सीवरेज के एम्प्लॉयज जो सीवरेज के अंदर गए थे, वो टॉक्सिक गैसेस के चपेट में आके उनकी चारों की डेथ हो गई थी। ओके, सो सैड। सो वो हमारे बिल्कुल बहुत ही नजदीक माल रोड के ऊपर कानपुर में ये किस्सा हुआ था। और हमारे वहाँ के उस समय लोकल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे, मिस्टर वाजपेयी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, तो वो एमएलए थे। तो उनके पड़ोस में एक मेरे दोस्त रहते थे। तो जब ये डेथ हुई तो मैं अपने उस दोस्त के पास गया। यार, मैंने कहा ये मंत्री जी से मेरी मुलाकात करा दो यार। तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई मंत्री जी से। तो मैंने उनसे बताया, सर ये जो आपके जो सीवरेज में जाते हैं क्लीनिंग के लिए, ये कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लेके जाते हैं। तो वो कहने लगे, कैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स? मैंने कहा रेस्पिरेशन के इतने सिस्टम्स आते हैं, लोग समुंदर की तह तक चले जाते हैं और केमिकल फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, ऑर्डिनेंस के अंदर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, तो वो तो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं। तो हमारे जो सीवरेज में गए हैं, इनके पास कुछ नहीं था, और अगर उनके पास वो होता तो ये हादसा ना होता। तो कहने लगे, आनंद जी आप मेरे को वो एक प्रपोजल बना के लेके आओ और मैं आपकी सेक्रेटरी के साथ मीटिंग रखाता हूँ। सो दैट is how I started with industrial safety and firefighting equipments as distributor for the entire UP। एक एडिशनल मैंने एक काम ये शुरू किया था और बहुत अच्छा मेरे पास रिस्पांस और बहुत काम किया मैंने। तो मतलब एक वो जो सोशल एक्टिविस्ट वाला जो जर्नी है, ये कह सकते हैं कि उसकी जो शुरुआत हुई थी वो उस इंसिडेंट से हुई थी। अब यू कैन से दैट कि एक दिमाग में था कि ऐसे लोगों की जान इतनी सस्ती जान जाती है कि तो क्यों ना इनको अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसके साथ। और फिर उसके बाद तो फिर उन्होंने एक पॉलिसी बना ली थी कि हर 6 महीने के बाद उनको ये पूरा सेट, हेलमेट, गॉगल्स, दिस थिंग, आई सेफ्टी, सेफ्टी मास्क, देन रेस्पिरेशन सिस्टम, देन बॉडी कवर्स, ये सारा कुछ उनको 2 बारी साल में ड्रेस मिलती थी, सारा विद ऑल दिस थिंग इक्विपमेंट्स, सेफ्टी बेल्ट्स एंड ऑल दैट। वंडरफुल। तो ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो लोग जो जा रहे हैं उस काम के लिए, वहाँ बहुत रिस्क है क्योंकि गैसेस होती है और बहुत खतरा भी है। तो सर अब मैं बात करता हूँ आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके। आपकी जो जर्नी थी, बिजनेस की जर्नी किस तरह से शुरू हुई और फिर सोशल एक्टिविस्ट आप किस तरह से बने और अब आज की डेट में क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ हो जाए। सोशल तो आप ये समझो कि 96 के बाद मेरे को जब एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया तो मेरे मन में होता था कि किसी ना किसी रिसोर्स पर्सन को बुला के वर्कशॉप करें और पेरेंट्स को अवेयरनेस दें, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिस घर में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पैदा हो जाए। एक बार तो उनको सोच के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हमारे एक जद्दोजहद लाइफ में एक ये भी शुरू हो गई है। और उसको लेके मेरा यही होता था कि कभी रिसोर्स पर्सन्स मैं सर्च करता रहता था जिनको कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने कुछ इस फील्ड में काम किया, तो मैं उनको बुलाता था और वर्कशॉप्स करता था पेरेंट्स के साथ। तो ये करते करते मुझे परिवार के साथ जुड़ा। परिवार का जो नॉर्थ का चैप्टर था, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ मेरे से पहले थे, वो डॉक्टर पंत थे लखनऊ से जी। और आई थिंक वो किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। इतना टाइम और इतना वो मतलब नॉर्थ की स्टेट्स को नहीं कर सके, जो मेरे आने के बाद मेरे को टाइम मिल गया और मेरे पास अपना इस काम के साथ साथ मैं टूर बना लेता था, कभी हरियाणा का, कभी हिमाचल का, कभी यूपी का। तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाके पेरेंट्स को इकट्ठा कर लेता था। पहले वर्क करता रहता था, होमवर्क करते करते, फिर जब मेरे को पता लग जाता था हाँ यहाँ 40-50 लोग हो गए, 30-35 लोग हो गए, तो मैं वहां पर जाकर उन पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके और कोशिश करता था कि एक पेरेंट एसोसिएशन फॉर्म कर दूं। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल
पे, सो दैट एक तो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, दूसरा अवेयरनेस के साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी पता लग जाता है कि वहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में ये पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं। Correct. तो हाँ, इसको लेके मैंने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन स्टेटों में पेरेंट एसोसिएशंस बनाई। पेरेंट एसोसिएशंस के साथ साथ बच्चों को चेहरों पे स्माइल देखने के लिए, बच्चों के चेहरों पे खुशी देखने के लिए उनके कल्चरल और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के साथ भी जुड़ने की कोशिश की, और पंजाब में जो स्पेशल ओलंपिक्स का चैप्टर है उसके साथ जुड़ा और उसके उन बच्चों के लिए काम करना शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशंस हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया, सो दैट कि बच्चों को खाली पढ़ाई एकेडमिक्स के साथ साथ उनको करिकुलम्स कुछ ऐसे मिल जाए ताकि वो, हर बच्चे के अंदर अपना अपना एक हुनर होता है। हाँ। और उसको तराशने की जरूरत पड़ती है। जैसे जोरी तराशता है, वो सोने का एक बिस्किट ले लेता है या कोई ढला हुआ सोना ले लेता है, उसको ढला के उसको बनाता है। तो ये होता है। तो इसी तरह हमारे को भी यही होता था कि हम बच्चों को तराशें और तराश कर एक अच्छा उनके अंदर जो हुनर है उसको बाहर लाएं, इसके ऊपर काम करने लग गए। राइट। और आज भी आप काफी सारी एसोसिएशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं, कई जगह पे काम भी कर रहे हैं। जी, मैं परिवार के साथ साथ हम एक फेडरेशन बनाने जा रहे हैं नॉर्थ की, पहले पंजाब की, फिर उसके बाद नॉर्थ की, सो दैट हमारे पास भी पेरेंट्स का एक, हम लोग को अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना पड़ता है, भेजते हैं अपने बच्चों को, तो हमको कोटा मिलता है कि आप 4 बच्चे लेके आ जाओ। पर हमारे 4 बच्चों, अगर जलंधर में अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 700-800 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चों किनको लेके जाऊं, किसको ना लेके जाऊं, तो एक बड़ा मुश्किल सा बन जाता है। तो मेरे अब जहन में यही रहता है कि जो 18 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ सेल्फ एडवोकेट्स के लिए अलग से कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस नॉर्थ में करूं। मैं साउथ अफ्रीका गया था एक डाउन सिंड्रोम कांग्रेस के ऊपर, वहां पर सेल्फ एडवोकेट्स की एक मीटिंग थी बच्चों की, तो स्टेज पे सारे बच्चे ही थे, ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे आए हुए थे। तो वो जब उनकी मीटिंग शुरू हुई तो उन बच्चों ने कहा, we will request all the parents inside the hall to kindly leave the hall as this is our conference. Wonderful. So इतना हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर भी इतने गट्स होने चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए उनके अंदर, मन के अंदर, कि हमारा डिसीजन हम खुद लें। आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले हमारे लिए? So, इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी। हमको उनको ऐसा बनाना है कि वो अपने डिसीजन खुद लें। दिस इज रियली वंडरफुल सर। और अगर हम सर बात करें आपके पैशन को लेके, तो आप किन चीजों को लेके आज भी बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपनी लाइफ में? मैं तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मेरे को तो यही बच्चे नजर आते हैं, और इनका भविष्य, इनकी चेहरे पे इनके एक मुस्कान देखने के लिए, एक खुशी देखने के लिए, पेरेंट्स के लिए साथ खास करके कि पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी चिंता है कि हमारे बाद हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम बच्चों को किसके संसार में किसके हवाले छोड़ के जाएंगे। इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ल्ड, इट्स अ वेरी बिग वर्ल्ड। अगर कायदे से हम देखें तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे बाद ये किसके, आज तो माइक्रो फैमिलीज हैं, बहुत छोटी छोटी फैमिलीज हैं, एक भाई है, कहीं तो एक ही बच्चा है, वो भी स्पेशल है, और पेरेंट्स के पास कोई चारा नहीं है, किसके पास छोड़ के जाएंगे। करेक्ट। और मैं अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने वहां पर जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वाले लोग थे, तो उनसे यही कहा कि हम अब जब बच्चा पैदा होता है वो 10 रुपए जमा करा के उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेता है, बच्चा या घर में किसी की डेथ होती है वो 10 रुपए 20 रुपए दे के डेथ सर्टिफिकेट बनवाता है। उसके बाद लाइफ स्पैन में डेली आप नमक लाते हो तो उस पर टैक्स देते हो, करेक्ट, आप कमाई करते हो उसके इनकम टैक्स देते हो, आप साइकिल लेते हो तो उसका सेल टैक्स देते हो, हम हर चीज पे टैक्स दे के, पर कहाँ सोशल सिक्योरिटी कहाँ है हमारे बच्चों की? करेक्ट। आज कितने बच्चे विदाउट पेरेंट्स हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है। करेक्ट। बच्चे लावारिसों की तरह सुबेरे घर से या जिस शेल्टर में रह रहे हैं वहां से उठ के निकल जाते हैं, रात को फिर घूम फिर के वहीं पर आके सो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का भी कुछ फर्ज बनता है। आज सरकारें
कोई शक नहीं है, बहुत जागरूक हो गई हैं। पिछले 70 साल के बाद, इतना लंबा समय के बाद जाके अब मैनिफेस्टो में आने लग गया ये बातें कि हम मेडिकल के ऊपर ध्यान देंगे, हम ये अस्पताल बना देंगे, हम ये पढ़ाई के लिए ये कर देंगे, हम पढ़ाई के लिए ऐसे ऐसा नई पद्धतियां लेके आएंगे, हम स्कॉलरशिप्स देंगे। जो चीज हम 70 साल तक हम नहीं पा पाए, आज सरकारें वोटों के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज वोटों के लिए कर रही हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा। हमारे हिंदुस्तान में सच पूछो, एक स्टेट है मणिपुर में पेंशन 100 रुपए है। कुछ स्टेट हैं ऐसी हैं जहाँ 300 रुपया पेंशन है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ 3000 पेंशन है। ना 100 रुपए से कुछ बनना है, ना 300 से बनना है, ना 3000 वाले से कुछ बनना है। आज महंगाई की जिस कदर महंगाई पहुंच चुकी है, हमारे को एक जीवन चलाना, एक इंसान को जीवन चलाना कितना कठिन है, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर पड़ती है। ट्रू। जिस समय यूएनसीआरपीडी हमारे उस समय के प्रधानमंत्री साइन करके आए थे, तो यूएनसीआरपीडी की बुक्स हम लोग को मिली थी पढ़ने के लिए। तो मैंने उसमें उन बुक्स के अंदर पढ़ा था कहीं पर कि हर सरकार को कानून के अंदर होगा कि आप एक फंड निर्धारित करेंगे, बजट निर्धारित करेंगे अपनी सरकार में कि आपने दिव्यांगों के लिए क्या सोशल सिक्योरिटी के लिए फंड रखा है। राइट। 2016 में बिल आ गया, कानून बन गया, पर आज तक अभी तक बजट के अंदर प्रोविजंस हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोविजंस तो रख दिए, पर एक मुश्त कि भाई हाँ, हम केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपया लगाएगी इसके ऊपर, और उस 20,000 करोड़ से हम हर स्टेट को 1,000 करोड़ देंगे, और स्टेट को बोलेंगे कि आप 300 करोड़ डाल दो इसके अंदर। तो 1,000 करोड़ की स्टेट के साथ 1,300 करोड़, हम तो एक बार तो इसमें काफी कुछ नई किरणें दिखाई देने लगेंगी। हम डेफिनेटली, अगर ये ऐसा होता है, एक फंड क्रिएट होता है और वो फंड वेलफेयर के लिए यूज होता है, मे बी क्रिएटिंग, एंड जैसे अगर हम देखते हैं फॉरेन्स में भी, वहां पे भी जो सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं वो अपने फैमिली से अलग उस एनवायरनमेंट में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनके एज ग्रुप के लोग हो, क्योंकि बच्चे अपने काम पे चले जाते हैं, वो तो बिजी हो जाते हैं। तो उनको वो लोग चाहिए जो उनके एज ग्रुप के हो, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर सके, बात कर सके, टाइम पास करने के लिए चेस खेल सके, कुछ भी एक्टिविटी कर सके। तो इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ भी क्रिएट हो सकता है कि वहाँ पे वो बच्चे रहते हो, उनकी टेक केयर करने के लिए जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कैन कम, और जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट, और वो लोग उस चीज को चलाएं और प्रॉपरली चलाएं, और वहाँ पे उनको वो सारी फैसिलिटीज मिले कि वो अपनी जिंदगी भी अच्छे से बिताए, और साथ में उनमें जो काबिलियत है, किसी बच्चे में हो सकता है म्यूजिक की एबिलिटीज हो, तो उस एबिलिटी के हिसाब से उसको कुछ काम या टास्क दिया जाए, ताकि वो इंटरेस्ट भी ले, कुछ डेवलप भी करे। क्रिएटिव है तो ऑब्वियसली बच्चे ऐसे कई जगह पे हम लोगों ने फोरम्स में देखे हैं कि बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम भी कर पाए, तो उनके लिए भी कुछ रेवेन्यू जनरेशन वहां हो सके। तो सर, इसी के साथ हम मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आपका विजन, मिशन, गोल आगे आपकी लाइफ में क्या है? अगले 5 से 10 साल में क्या आप करना चाहते हैं? और क्योंकि मेरे को सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड में रखा है, तो मैं दिव्यांगों की आवाज बना हूँ, और मेरी यही कोशिश है, राइट फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन, हर सिविल अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स जो कि अभी तक नहीं बने हैं, पहला शुरुआत उसके लिए जो भी फंडिंग है सरकार की, ताकि वो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, बट वो ना के बराबर हैं। उनको लेकर 23 के 23 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स बनाने हैं, क्योंकि मैं इलेक्शन के साथ जुड़ा हूँ, और इलेक्शंस के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल और यू कैन से यूनिवर्सिटीज तक, ये सारों में क्योंकि पुराने टाइम से बने हुए हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ना होने से एसेसिबल नहीं है ये। अगर किसी, क्योंकि इलेक्शन का, हम जब इलेक्शन में जाते हैं वो टेम्परेरी फेस वहाँ पर रैंप बना देंगे, हैपोजर्ड वे में बाथरूम में व्हीलचेयर नहीं जा सकती है, उसका दरवाजा तोड़ देंगे, दरवाजा निकाल देंगे, वहाँ पे टाट लगा देंगे। हमको इन सब चीजों के लिए एकेडमिक्स में भी सुधार करना है। इसके अलावा जो हमारा मेडिकल सिस्टम है,
हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के लिए क्यूज लगानी पड़े। मैंने कोविड के टाइम तो इसको खत्म करा लिया था पंजाब में कि हमारे बच्चों के लिए कोई क्यूज में नहीं जाएगा, बल्कि स्पेशल कैंप्स लगवा दिए थे कि डिसेबल्स को वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने अपने सेंटर्स के अंदर सारे पंजाब में जी हम लोगों ने एनजीओस के सहयोग से ये किया। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो भी किसी हॉस्पिटल में जाता है, ओपीडी में जाता है, उसके पर्ची के ऊपर पीडब्ल्यूडी की मोहर लग जाए और उसको प्रायोरिटी मिले। वो एक व्हील चेयर वाला या एक क्लचेस वाला या एक ब्लाइंड या एक डेफ, वो अकेला तो नहीं जाता है, उसके साथ एस्कॉर्ट्स होता है, उसके साथ पेरेंट्स होते हैं। एक इंसान के साथ 3 लोग कम से कम और जुड़े होते हैं। तो हम उनका समय को बचाने के लिए, उनको प्रायोरिटी देने के लिए चाहेंगे कि उनको मूल रूप की सुविधाएं जो हैं, एसेंशियल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको प्रायोरिटी पे मिले और उनको स्पेशल दर्जा दें। जहां तक हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवे स्टेशन हैं, अब राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोग्राम था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, अंबाला से लेके अमृतसर तक जी एक भी रेलवे स्टेशन एक्सेसिबल नहीं है। और इस एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम को मेरे ख्याल 2019 में इन्होंने शुरू किया था। 2019 से लेके 22 तक अभी तक ये प्रोग्राम में हमारा एक भी रेलवे स्टेशन, और इसी तरह बस स्टैंड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हुआ है। सारे पंजाब के बस स्टैंड्स को भी एक पॉलिसी के तहत, हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स के हैं उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो बच्चे हमारे कल्चरल में हैं उनके लिए कल्चर में पॉलिसी, क्योंकि हम इन बच्चों का तो कैरियर ही वही चीज है। अगर स्पोर्ट्स में है, अगर उसको उसका बनता मान सम्मान, हक या कैश अवार्ड मिलेगा तो नेचुरली उसको वो प्रोत्साहन के तौर पे लेके उसको आगे और उसका मनोबल बढ़ेगा और वो काम कर सकेगा। सेम ये कल्चर में पंजाब का हेरिटेज कल्चर बहुत रिच है और हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इसको भी अपनाएं और इसको आगे लेके जाएं। इसके लिए पॉलिसी चाहिए। करेक्ट। और जो प्राइस मनी है सर, वो भी एट पार अभी नहीं है, वो भी एट पार हमारे यहाँ। जितने भाई हमारे पंजाब में तो एक फूटी कोड़ी किसी को नहीं मिलती है, जबकि मेरे हिसाब से कम 40 लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, डेफ हैं, ब्लाइंड हैं, स्पेशल ओलंपियंस हैं हमारे, जो मेडल गोल्ड सिल्वर मेडल ला के पंजाब का नाम ऊंचा किया। उन्होंने पंजाब को एक मान सम्मान दिलाया, पूरे भारत को मान सम्मान दिलाया। आज तक पंजाब ने उनको एक पैसा नहीं दिया। क्यों? कि स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी तक पारित ही नहीं हुई है। बनी तो 6 बार है पर आगे नहीं गई है। सो हमारे को उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक लंबी जदोजहद अभी भी बाकी है जो करनी है। इसी तरह क्योंकि डेवलपमेंट, कंट्री का डेवलपमेंट, स्टेट का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है, अच्छा है, मुबारक है, पर हम चाहते हैं इसके साथ साथ उन लोगों को भी जो हमारे डिसेबल बहन भाई हैं, वो अगर अपनी गाड़ी से हैं या किसी गाड़ी को हायर करके जा रहे हैं, उनको पार्किंग के लिए स्पेशल पार्किंग प्रोविजन दिए जाएं। एक स्टिकर प्रोवाइड कर दिया जाए कि भाई पर्सन, उसका पास यूडीआईडी कार्ड है कि वो डिसेबिलिटी वाला है, तो उसको इसकी स्टिकर भी दे दो भाई, वो अपना गाड़ी के ऊपर लगा के अपनी गाड़ी तो पार्क करे। अब उसको 1.5 मील दूर उसकी पार्किंग होती है, वो वहां से पैदल फिर व्हीलचेयर चला के आता है। भाई कुछ तो उनका हक जो बनता है हमने उनको हक दिलाने हैं। इसी तरह जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, हमारे पास पंजाब के अंदर होम्स की बहुत दिक्कत है। ऐसे होम्स नहीं हैं जहां पर ऑर्फन करके स्पेशल बच्चे रहने का सुविधा अवेलेबल हो। वो बच्चे, अब मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ मैं कि वो कहाँ हैं, कहाँ गए, चले गए, कौन ले गया, किस हालात में है, नोबडी नोस। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है सर। अभी भी बहुत सारे चीजें हैं जो अभी भी वर्कआउट होनी जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे करियर ऑप्शंस हो। अभी सभी जगह बहुत काम करने की जरूरत है। तो इसके पहले कि हम एक और क्वेश्चन जो एक्चुअल में हमारा कोर थीम है उस पर जाएं, एक क्वेश्चन और मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आपका जो लाइफ लर्निंग्स रही हैं, 2-3 लाइफ लर्निंग आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जर्नी से, वो क्या रही है सर अभी तक की? हमारा जब तक हमारे यंगस्टर्स, आने वाली जनरेशन अगर आगे नहीं आएगी और पॉलिटिकली अगर वो आगे नहीं जाएंगे, यंगस्टर्स, मैं चाहता हूं यंगस्टर्स, मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि हमारा भविष्य, अगर आज हम
अपना भविष्य आने वाली जनरेशन को दे देते हैं, तो हम लोगों ने पिछले लोगों को देख लिया जिन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे सामने एक शीशा है, हमको दिख रहा है कि हमने 70 साल में क्या कमाया क्या नहीं कमाया। पर आने वाला भविष्य मैं चाहता हूं कि हम यंगस्टर्स को आगे आए और पॉलिटिक्स को अपनाएं और देश को आगे लेके जाए। सबसे बड़ी बात है, देश के अंदर एक रेवोल्यूशन चाहिए हमको, जो एक यंगस्टर्स को आगे आएंगे और इसमें तभी रेवोल्यूशन आ सकेगा। पुरानों लोगों के पास एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, पर वो एक्सपीरियंसेस अगर वो चाहते हैं, अगर पॉलिटिक्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके पास भी गूगल जैसे हमारे पास क्या, हमको सबके हिस्ट्रीज मिल जाती हैं कि किस आदमी ने क्या काम किया और क्या अच्छा काम किया। हमने अच्छे काम करने वाले को कॉपी करना है और देश को आगे लेके जाना है। बहुत जरूरी है एक बदलाव की एक्चुअल में हर फील्ड में, स्पेशली पॉलिटिक्स ऐसा है चीज जो देश चलाता भी है और देश को बनाता भी है। और पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें तो आज भी जो पुराने लोग चले आ रहे हैं ट्रेडिशनली फैमिली से, वही ज्यादातर लोग हमें पॉलिटिक्स में देखते हैं। जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है वो तो पॉलिटिक्स में बहुत कम आते हैं या बहुत कम दिखते हैं। तो ये भी एक चीज है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, लोगों को आना चाहिए। तो सर अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में भी था और हम लोग बात भी कर रहे थे पहले से, कि जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, पेरेंट्स हैं जब तक वो उनका ख्याल रखते हैं पूरा शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ ख्याल रखते हैं। पर अगर पेरेंट्स नहीं होंगे, जो आप भी बात करते करते ये कई बारी बोले हैं, तो उसी के ऊपर अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो उनका क्या होगा, उनकी लाइफ कैसे चलेगी आगे? आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आज हर पेरेंट्स के दिमाग में, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्स में, एवरी पेरेंट थिंक्स व्हाट आफ्टर अस। एक बहुत अहम क्वेश्चन है। मैं तो जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे बोलूंगा कि आप एक मुहिम बनाओ, पेरेंट एसोसिएशन ज्यादा से ज्यादा बनाओ और वोकेशनल और रेजिडेंशियल के ऊपर काम करो। छोटे छोटे होम्स बना लो और इन बच्चों की रेजिडेंशियल सुविधा इनको दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जितनी भी एनजीओज काम कर रही होंगी, उनको सरकार को फंडिंग देनी पड़ेगी इन होम्स को चलाने के लिए। करेक्ट। क्योंकि जो CSR भी है वो भी राइटली बड़े बड़े संस्थानों के पास ही चला जाता है, जिनकी अप्रोच है, जिनका पॉलिटिकल वो है, बट छोटी संस्थानों को नहीं मिलता है। मैं एज CWC मेंबर था, तो जितने हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो एडॉप्शन में कहाँ जाते हैं, तो मेरे नॉलेज में जो डाटा या जो सामने आया है वो ये है कि यूएस के कई ओल्ड एज पेरेंट्स जिनके अपने बच्चे तो उनके साथ रहते नहीं हैं, हमारे यहाँ से स्पेशल बच्चों को अडॉप्ट करके ले जाते हैं और वहाँ की सरकार उनको बहुत अच्छा फंडिंग प्रोवाइड करती है उन बच्चों की देखरेख और मेडिकल के लिए। राइट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर होम्स बहुत लिमिटेड हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटीज के कुछ होम्स हैं या प्राइवेट सेक्टर में कुछ होम्स हैं, बट उसमें भी उनकी लिमिटेशंस हैं। वो कोई 20 बच्चे रखता है, कोई 25 बच्चे रखता है, इससे ज्यादा कोई बच्चा नहीं रखता है। करेक्ट। और वहां पर 2 लोग पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ ने एक होम बना लिया है और उस होम में वो 10 बच्चे रखते हैं। 2 खुद में, 2 उनके साथ केयर टेकर्स हैं 8-8 घंटे वाले, और वो उनको संभालते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले वोकेशनल पे काम करें, वोकेशनल के साथ साथ अपना एक्सपेंशन में गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए रेजिडेंशियल बनाएं, ताकि हम ना रहें या ना रहें, हमारे बच्चे स्थित रहें। करेक्ट। और जो बच्चों की एबिलिटीज है उसके हिसाब से उनको कोई ना कोई ऐसा स्किल सिखा दिया जाए ताकि वो कुछ कमा सके। बिल्कुल बिल्कुल। जब वोकेशनल देंगे तो नेचुरली वोकेशनल का मकसद ही यही है कि उनको एम्पावर करना है, कि उनको कुछ काम सिखा दें जिससे वो थोड़ा सा अपना लिवलीहुड, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे। बच्चे के अंदर हुनर होता है, हमको तराशने की जरूरत पड़ती है। हम तराश लें और उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दें। करेक्ट। बहुत जरूरी है कि एक बार वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, चाहे थोड़ा ही कमा रहे हो, लेकिन अगर कमा रहे होंगे तो एटलीस्ट उनकी लाइवलीहुड की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा उनको देख रेख की जरूरत होगी, अगर वो थोड़ा देख रेख उनको मिल जाएगी तो उनकी लाइफ कट सकती है आराम से। बिल्कुल सही। राइट। सर एक चीज और है इसी से रिलेटेड, जैसे UNCRPD और RPWD एक्ट 2016 में काफी सारे चेंजेस और सजेशंस डाले गए हैं कि इन लोगों की लाइफ को बेटर किया जा सके उनके पेरेंट्स के बाद भी। तो वो चेंजेस अभी इम्प्लीमेंट तो जैसा आप बता रहे थे कि वो पूरी तरह से नहीं हुए, तो वो
क्या चीज है जो इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है और किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो कि सरकारों की नीयत होनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज बननी Correct. चाहिए, क्योंकि 2016 2023 7 साल हो गए, जबकि जब एक्ट बना था तब ये प्रोविजन था कि 3 साल में इसकी इम्प्लीमेंटेशंस पूरी कर ली जाएंगी, बट अभी Right. तो हम हाफ द वे भी नहीं है। और और कई जगह पे तो हम कह सकते हैं शुरुआत भी नहीं हुई है अभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमको इसके ऊपर, हर राज्य की सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट के प्रोविजन सबसे बहुत जरूरी है कि आने वाला जो केंद्र सरकार का बजट है उसमें भी प्रोविजन इसके बढ़ाने की जरूरत है, और बढ़ा के इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जरूरत है। स्टेट की पॉलिसीज, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हर एक हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी सब मिनिस्ट्रीज में डिसेबिलिटी पॉलिसीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो इसको होंद में लेके आए। ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन में लाना की जरूरत है। तो बहुत जरूरी है सर। एक तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज अगर साथ में मिलके काम करते हैं तो दैट विल आल्सो गिव गुड रिजल्ट। और कई कॉर्पोरेट्स हैं जो फंडिंग देते भी हैं, राइट। कई कॉर्पोरेट्स हैं जो अलग अलग कॉजेज के लिए फंड्स देते हैं। गवर्नमेंट भी अगर अपना इन्वॉल्वमेंट ठीक तरीके से दिखाए और ये पार्टनरशिप को अगर आगे लेके चलें तो इट कैन गिव गुड रिजल्ट्स। वेरी ट्रू। सो कमिंग बैक टू यू अगेन सर, जैसे कि आपसे बात करते हुए आई कैन फील इट, बट स्टिल आई वांट टू नो कि आप बाय नेचर किस तरह के इंसान रहे हैं अब तक, और अब भी आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं? क्या आपको लगता है इसके प्लस माइनसेस हैं जब आप इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं? तो मैं अगर शुरुआती तौर से पूछूं तो बचपन में बहुत शरारती था पर जी, जो एज का तकादा आता गया, शरारतें सब छूट गई हैं, अब थोड़ा सीरियसनेस आ गया है तो जीवन को मकसद मिल गया है कि इस मकसद के साथ जीना है। तो सर जो आपकी जर्नी रही है अब तक की, किस तरह के लोगों ने आपको सपोर्ट किया है? कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने आपको काफी हद तक सपोर्ट किया? मेरे को प्यार करने वाले, मेरे को ब्लेसिंग देने वाले, मेरे काम को सराहने वाले, हर किस्म का इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अनलिमिटेड लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कईयों को नहीं भी जानता हूँ, वो भी मुझसे आके कहते हैं कि आनंद साहब, हमने आपका वो वाला इवेंट देखा था, वो आपका प्रोग्राम देखा था, और मन को खुशी मिलती है कि एटलीस्ट समाज को जो भी दे रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ समाज के लिए, एक अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में। करेक्ट, दैट्स रियली वंडरफुल। तो सर अगर मैं बात करूं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में क्या है? कैसे आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लाइफ में मिलता है? मोटिवेशन मेरी बेटी मेरी मोटिवेशन है। अगर ये मेरे यहाँ जन्म ना लेती तो मैं आज पता नहीं माया के दलदल में कहाँ फंसा होता, पैसे के चक्कर में कहीं डूबा होता। पर मुझे 50 साल की उम्र में ये माया जाल से बाहर आ गया। मेरे को पैसे की बिल्कुल लालसा नहीं रही, बस यही था कि जीवन में कुछ करके इन बच्चों के लिए कुछ करना है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को देखते देखते मैं क्रॉस डिसेबिलिटी तक कब पहुंच गया कि आज मैं विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, कोई डेफ है उसके लिए काम कर रहा हूँ, किसी को कोई भी डिसेबिलिटी है तो हर डिसेबिलिटी के साथ पूरी तन मन धन से उनका सहयोग, उनके लिए काम करता हूँ। ग्रेट सर, दैट इज रियली वंडरफुल। और जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही मतलब तारीफ की बात है कि आप इतने सारी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता है? सर अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप सक्सेस को किस तरह से देखते हैं? आपका व्यू सक्सेस को लेकर क्या है? मैं किसी चीज के पीछे भागा नहीं हूँ, हर चीज मेरे पीछे खुद चली आती है। मेरे को नहीं पता लगा कि मैं कब इस मुकाम तक पहुंच गया। मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूँ कि एक महात्मा की एक मैंने कहानी सुनी थी। वो कहते थे कि आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद। आप पैसे से सोने का चश्मा बनवा सकते हो पर नजर नहीं। और मेरे को इस मुकाम तक, मैं कितने लाखों करोड़ों खर्च कर लेता, मैं इस मुकाम तक ना पहुंच सकता अगर आप सबकी दुआएं और आप सबके प्यार ना होता। करेक्ट, सपोर्ट की तो जरूरत होती है सर, कभी मेंटली कभी इमोशनली, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होती है कि मोटिवेशन भी लाइफ में जरूरी है। जैसे आपकी बेटी को डिसेबिलिटी थी, वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना कि आपको ना सिर्फ उसकी लाइफ अच्छी करनी है बल्कि और लोगों की भी लाइफ अच्छी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब सर लास्ट सवाल आपसे, कोई मैसेज, एडवाइस आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स और लिसनर को? मैं सबको, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, मैं सबसे यही कहूंगा, आपको अपने बच्चों के लिए
एक मार्ग बनाना है, एक रास्ता बनाना है जिसके ऊपर ये बच्चे चलकर एक सुंदर अच्छा भारत की सृजना करें। आप इनकी एक लाठी बन जाएं और ये मार्ग पे कैसे चलते हैं ये आपको खुद नजर आ जाएगा। मैं इन शब्दों के साथ सबसे कहता हूं, आप एक संस्था जरूर बनाओ, पेरेंट्स एसोसिएशन बनाओ, एनजीओ बनाओ और समाज को एक अच्छी एनजीओ देके, अच्छी संस्था देके, और समाज का ये जो वर्ग है अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ है। करेक्ट। अभी हमने बहुत आगे तक जाना है, पर आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की हिम्मत से ही ये पॉसिबल हो सकेगा। राइट, और बहुत जरूरी है सर, सभी लोग मिलके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो दैट कंट्रीब्यूशन कैन मेक अ बिग वन। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी तरफ से, चाहे फिजिकली जाकर हेल्प कर सकते हैं तो वो कर लें, इमोशनली किसी को कनेक्ट करके हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनल प्रॉब्लम्स भी लोगों को काफी देख रहे हैं आज की डेट में। और कहीं पे आप फाइनेंशियली भी अगर प्रॉब्लम मतलब किसी कॉज के लिए सपोर्ट कर सकते हैं तो फाइनेंशियली भी करना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि तीनों तरह से आप सपोर्ट करेंगे तो ही वो सपोर्ट जो है, मतलब सब लोगों का सपोर्ट मिलकर वो पूरे देश के लिए जुड़ेगा जब, तो डेफिनेटली इंडिविजुअली हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 10, 20, 100, 1000, 5000, 5 लाख रुपए, बट जब वो बल्क में इकट्ठा पैसा होगा डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा होगा और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था जी, एक एनआरआई है जिन्होंने कैंसर के ऊपर बहुत काम किया है, वो पंजाब को बिलोंग करते हैं, धालीवाल नाम है उनका। वो रात को एक मरीज दिखा रहे थे जिसकी डायबिटिक्स करके काफी लेडी थी, मस्ट बी अराउंड 50s, उसके पैरों में सोजस, उसके मतलब उनको काट कर उस चीज को उस रोकने की बात आ रही थी। तो वो कह रहे थे कि मुबारक है गुरुद्वारे में पैसा देना, मंदिर में पैसा देना, चर्च में पैसा देना मुबारक है, बट किसी गरीब के मुंह में पैसा डालना, उसका इलाज करा देना, उसको दवाई दिला देना, ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा मुबारक है। सो आप अपना जो पैसा यूज करते हो, दान करते हो, उसका एक मकसद होना चाहिए, उस मकसद में आपको खुशी मिलेगी अगर आपका वो पैसा सही हाथों में जाएगा। करेक्ट। आप ये मत देखो कि मैं यहाँ पर 5 लाख दे रहा हूं तो मेरे नाम का एक पत्थर लग जाए, वो पत्थर ने आपको कुछ नहीं देना है। आपको संतुष्टि 5 मिनट की संतुष्टि होगी, सब भूल जाएंगे कि आपने 5 लाख दिया था, आपका पत्थर लगा है, पर आपके साथ वो 5 लाख दिया हुआ किसी गरीब गुरबे को, किसी जरूरतमंद को दवाई दिलाई हुई, उसको इलाज दिला के उसको ठीक करके उसकी जो दुआएं आपको मिलेंगी वो 50 साल अनमोल रहेंगी। वो अनमोल है सर, उसका कोई मतलब डिफाइन नहीं कर सकते उसकी वैल्यू। सो सर आई मस्ट से कि जो हमारा आज का डिस्कशन था बहुत ही अच्छा था और बहुत ही एक नोबल कॉज के लिए था। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू हियर। जो आपने बातें बताई रिलेटेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी प्रॉब्लम्स, किस तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है, बस एक सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन हम लोग को खुद अपने थ्रू शुरू करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई मस्ट थैंक यू सर फॉर योर टाइम एंड योर एनर्जी, कि आप आज भी उतने ही एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं जितना आई थिंक आज से 20-25 साल पहले काम करते थे। और वो एनर्जी इस वजह से है क्योंकि आपका पैशन, आपका मोटिवेशन लोगों की हेल्प और लोगों को सपोर्ट करना है, उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है वो डबल हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। दैट इज वंडरफुल। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। और सर साथ में मैं आपका सोशल मीडिया लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट जो भी लोग देख रहे हैं और जो भी लोग इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चीज के बारे में और जानना चाहें वो आपको कनेक्ट कर पाए और जहाँ पे भी आपकी हेल्प ले सके या जहाँ पे भी वो कंट्रीब्यूट कर सके वो आपसे कनेक्ट करें, तो दैट विल बी ग्रेट। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जरूर उस कनेक्शन को देखिएगा, लिंक्स को देखिएगा और सर से कनेक्ट करिएगा, और जहाँ भी आप हेल्प कर सकें या जहाँ भी आपको हेल्प की जरूरत है, सर इज देयर टू हेल्प यू आउट। माय प्लेजर। थैंक यू सो Always. Or thank you so much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye. Right here. Thank you.